I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello my dear students. So today we will start our second chapter from biology, that is reproduction in plants. किस तरीके से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना. Reproduction is a characteristic features of all living organisms by which they produce their young ones to maintain their race. Reproduction ऐसा characteristics है, ऐसा features है, ये हर एक living organisms में होता है जो कि प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस की उनकी जो रेस है वो मेंटेन होती रहे. Mango seeds give rise to mango tree, apple seed give rise to apple tree. Similarly, animals produce their own race such as cats give birth to young ones, dogs give birth to their puppies. Some animals lay egg to maintain their race. ओके बेटा, अब रिप्रोडक्शन में देखो, अगर आपके पास मैंगो सीड है, मैंगो सीड से क्या बन जाएगा, मैंगो ट्री बन जाएगा. इफ़ यू पेनिट्रेट दैट सीड इनटू द सॉइल, एप्पल सीड से एप्पल ट्री बन जाएगा. सिमिलरली जैसे प्लांट्स होते हैं वैसे एनिमल्स में भी जो डॉग है वो बर्थ देता है पपी को, कैट बर्थ देती है उसके यंग वन को. सो इस तरीके से जो क्या है उनकी जो रेस है वो मेंटेन रहती है. कुछ बर्ड्स क्या होता है वो एग ले करते हैं. सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स एट द सेम स्पीशीज इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं न्यू ऑर्गेनिज्म का, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम स्पीशीज़ की, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. This type of reproduction does not involve fusion of male and female sex cells. Since single parent is involved, the offspring possesses the same features as the parent. For example, amoeba, spermatium, स्पाइरोगैरा. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ईदर मेल या तो फीमेल. ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और वहाँ से प्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन होती है सिंगल पेरेंट्स. तो वहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स क्या है, अमीबा, परमेशियम एंड स्पाइरोगैरा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल सेल्स का और बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल सेल्स का और दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल cat, dog, horse, human beings. In this process, 2 sex cells, male and female gametes, fuse to produce an embryo. अब इसमें क्या होता है, 2 sex cells, male और female gametes fuse होते हैं और produce करते हैं embryo. The male produce gametes called sperms, while the female produce gametes called egg. Sperms and egg fuse to produce an embryo. This sperm and egg fuse to produce an embryo. The embryo finally grow to produce a new individual. It possesses the characteristics of both parents and not a single parent. Most probably beta, asexual reproduction only one parent in involved. Sexual reproduction 2 parents in involved. In this sexual reproduction, male gametes and female gametes fuse to produce an embryo. Okay, and this embryo फाइनली प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल एंड दैट और उसमें जो एम्ब्रियो होगा, जो न्यू बर्न होगा, उसमें दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स प्रेजेंट होंगे. नाउ कॉर्न इज द अंडरग्राउंड स्टेम कंसिस्टिंग ऑफ स्फेलो बेस surrounded by the scale. The stems has one more buds that grow into a new plant. अब बच्चा we will start asexual reproduction in plants. पहले हम क्या पढ़ेंगे, asexual reproduction in plants.
इन प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। मैंने क्या बोला था, रिप्रोडक्शन में दो मेथड्स होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, सबसे पहला आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मीन्स, बाइनरी मीन्स टू एंड फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, और फिजन का मतलब क्या होता है बेटा, स्प्लिट करना। In this method, the parent's body divided into two halves to produce two daughter cells. It is a common method of reproduction in bacteria. Basically, asexual reproduction मतलब बैक्टीरिया में ही ज़्यादा होती हैं। इसमें क्या होता है बेटा, एक पेरेंट सेल है, उन्होंने अपने आप को दो में डिवाइड किया और ये दो डिवाइड होकर इन्होंने दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस किया। उसके बाद ये दोनों डॉटर सेल्स इंडिविजुअली फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बेसिकली ये रिप्रोडक्शन कहाँ पर होती है बेटा, बैक्टीरिया में होती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ फुल ग्रोन बैक्टीरियम डिवाइडेड इनटू टू बाय फॉर्मिंग अ वॉल इन द मिडिल। मतलब ये कैसे होता है, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने आप को डिवाइड कर देती हैं और एक वॉल आ जाती है बीच में, वॉल प्रोड्यूस करते हैं। द वॉल सेपरेटेड, जो ये वॉल है वो सेपरेट करती है टू डॉटर बैक्टीरियाज को। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑल्सो, इसमें जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। इट इज कॉल्ड फिजन। ईच डॉटर सेल्स ग्रोन इनटू एन अडल्ट इंडिविजुअल विच डिवाइड्स अगेन। अब ये दोनों डिवाइड हो गई, अब ये आगे फिर से वही प्रोसेस करेगा, ये अपने आप को दो में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो क्या है, रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होती रहेगी। ये क्या होता है बेटा, बेसिकली यूनिसेलुलर्स होते हैं। ये अमीबा जो हो गया, ये क्या है, यूनिसेलुलर्स हैं। बाइनरी फिजन इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो सीन इन ऑर्गेनिज्म सच एज algae, फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला। In algae such as Chlorella chlamydomonas, asexual reproduction seen to form। मतलब इसमें क्या है, ये सब चीज़ें ना यहाँ पर asexual reproduction आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। ऑफ मल्टीपल asexual reproduction seen to in form of multiple। अब इसमें मल्टीपल फिशंस भी होती हैं अगर उनको प्रॉपर अनफेवरेबल कंडीशंस मिल रही है। द ऑर्गेनिजम्स डेवलप्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इटसेल्फ। अब इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स है ना अपने ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग अपने ऊपर लगा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्किस्ट। दिस सेल डिवाइड, जो ये सेल है वो अपने आप को अगेन एंड अगेन डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं डॉटर सेल्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। एक फेवरेबल कंडीशंस होती है, द सिस्ट ब्रेक डाउन एंड अ डॉटर सेल्स एंड आर प्रोड्यूस। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मल्टीपल फिजन में इन अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब कंडीशंस फेवर में नहीं है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद जब फेवर होता है, फेवर आते हैं, जो सिस्ट ऊपर उसके सराउंडिंग्स में एक कवरिंग होती है सिस्ट की, ये क्या होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। ये जो डॉटर सेल है ये ग्रो होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स में। आपने बाइनरी फिजन में बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर बाइनरी मीन्स टू, फिजन मतलब स्प्लिट, मतलब कि दो पार्ट्स में डिवाइड होना है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पेरेंट है इन्होंने अपने आप को डिवाइड किया दो डॉटर सेल्स में, उसका फिर दोनों सेल ने इंडिविजुअली फंक्शन को परफॉर्म किया। बर्डिंग, बर्डिंग टेक प्लेस इन फंगस सच एज ईस्ट सेल्स। जो बर्डिंग है ये कहाँ पर होता है, फंगस कैसे, ईस्ट सेल्स में। स्मॉल आउटग्रोथ called bud is formed on the body of the organisms. It contains nuclear matter from the cell. This outgrowth increase in size and separate from the parent cells. It then developed into a new organism. अब जो ये बर्डिंग है बेसिकली ये कहाँ पर होती है, फंगस में, जैसे कि सच एज ईस्ट सेल्स। अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड इज फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मतलब कि एक स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड, जो उसको हम बर्ड बोलते हैं, वो फॉर्म हो जाते हैं। इट कंटेन न्यूक्लियर मैटर फ्रॉम द सेल। द आउटग्रोथ इंक्रीज इन साइज एंड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स। इट देन डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। बर्डिंग, बर्डिंग बेसिकली बेटा ये क्या है, फंगस है, जिसको हम ईस्ट सेल्स भी बोलते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में फॉर्म होते हैं। ये क्या होता है, ये दिस आउटग्रोथ इंक्रीज, मतलब इसका जो साइज है ये बढ़ता जाता है और सेपरेट, जब इनका साइज बढ़ जाता है तो ये अपने पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, समटाइम्स द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। कभी कभी ना समटाइम्स ना जो बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की वो ब्रेक होती है दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू adult individuals. It is commonly seen in filament algae, for example Spirogyra। देखो algae में होता है, सबसे पहले ये पेरेंट है, ठीक है, इसने क्या किया, अपने आप को दो पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया।
अब ये फर्दर अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी, ये भी फर्दर अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अलगी में होता है। उसके बाद ये अपना ये पहले हुआ इतना बड़ा साइज का है जिसने दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिए, अब ये इंडिविजुअली फंक्शन परफॉर्म करेगा और ये अलग से, अब ये फिर से डिवाइड करके 2 में कर जाएगा, फिर ये इंडिविजुअली फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है मैं बेस्ट बता देती हूँ ब्रेड के ऊपर, ठीक है। ब्रेड आप ना कुछ टाइम तक ना अपने घर पे ना ब्रेड को रख दो फ्रिज के ऊपर, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ना उसके ऊपर ना वाइट कलर का सब्सटेंस आने लग जाएगा, मतलब आप बोलते हैं ना उली लग गया, खराब हो गया, तो वो क्या है, वो स्पोर्स है। स्पोर्स क्या करते हैं, अब क्या हुआ, जो स्पोर्स है ना आपकी हवा में ना घूमते रहते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वहाँ पर आके स्टिक हो जाते हैं, वहाँ पर आके स्टिक होने के बाद उनको प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है, प्रॉपर मॉइस्चर में वो ग्रो करते हैं, ठीक है। इन फंगाई some hyphae become erect and swell up into the tips. This erect limb called spirogyraphore and then swollen tip is called spirogium. अब ये क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है बेटा कि जो ऊपर की जो टिप को क्या बोलते हैं हम, स्पोरेंजियम बोलते हैं, और इरेक्ट बाय दी हाइफिन पूरा इसको क्या बोलते हैं, स्पारोगियोफोर बोलते हैं। अब बेसिकली जो ये मैनी स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम बर्स्ट इनटू अ liberate spores which are carried away by the wind under suitable conditions. The spore developed into a new plant. Spore formation is commonly seen in bread molds. अब वही मैंने जो समझाया वही लिखा हुआ है कि जब भी उनको विंड के साथ हवा में रहते हैं, वो जब भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं वहाँ पर आके स्टिक हो जाते हैं और उस तरीके के फंगस को फॉर्म कर देते हैं। ये भी क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने क्या बोला, जो बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इनको पेरेंट्स की, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट में नहीं होती है, सिर्फ एक पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से ही सारा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो ये जो स्पैरोगिराफोर है और स्पोरेंजियम है ना, ये टिप्स है बेटा, यहाँ की इसके डायग्राम में आपको प्रॉपर डायग्राम में शो हो जाएगा कि ये स्पोरेंजियम और स्पैरोगिराफोर एग्जैक्टली कहाँ से होते हैं, वो मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में डेफिनेटली समझा दूंगी। तो एक बार क्विक फिर से बता देती हूँ आपको। बाइनरी फीजन मतलब अमीबा, यहाँ पर क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स जनरेट होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सिंगल सेल से पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बर्डिंग क्या है, बेसिकली फंगस जैसे ईस्ट सेल्स होते हैं, ये फॉर्म होते हैं ये फॉर्म होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जब भी इनको वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये अपनी साइज को बड़ा करते हैं, साइज को बड़ा करने के बाद ये अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन बेस्ट एग्जांपल अलगी का, ये अपने आप को क्या कर देता है बेटा, डिवाइड कर देता है एक या एक से ज़्यादा में, और उसके बाद इंडिविजुअली फंक्शन परफॉर्म करता है। स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ब्रेड मॉल्ड्स, जो आपके ब्रेड में मॉल्ड्स लग जाते हैं वो यही होता है। ये आपके विंड में प्रेजेंट होते हैं, हवा में, जब भी उनको सूटेबल कंडीशन होता है वहाँ पर जाके स्टिक हो जाते हैं और वहाँ से डेवलपमेंट, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली ये स्पोर्स ना डेवलप हो जाते हैं एक न्यू प्लांट्स में, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन ज़्यादातर हमको ब्रेड मॉल्ड्स में ही दिखती है। Vegetative propagation, sometimes the plant is produced from other part of the plant such as root, stems and leaves. अब कभी कभी कुछ प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट से, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीफ से, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज़ सीन इन प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, मतलब ये ऐसे प्लांट्स में होते हैं जो प्लांट्स सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, और प्लांट्स इन विच सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट, मतलब ऐसे प्लांट जहाँ पर सीड जर्मिनेट ही नहीं होते हैं, वो ऐसे प्लांट्स में ये हेल्प करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल वेजिटेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अगर आप स्टेम लगा रहे हो अंडरग्राउंड, द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स हैव बर्ड्स दैट ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनटू न्यू प्लांट्स। अगर आप स्टेम कभी भी लगा रहे हो ना, अगर उसके पास बर्ड है, स्टेम्स हैव बर्ड, तो वो एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन की फंक्शन से परफॉर्म होगा। आप उसको सॉइल में पेनिट्रेट करोगे तो एक न्यू प्लांट जनरेट होगा। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट शो वेजिटेटिव, मतलब बहुत सारे स्टेम्स हैं, बहुत सारे काइंड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन
शो करते हैं। ट्यूबर आर स्वेलन फ्लैशी अंडरग्राउंड, ये ट्यूबर का स्वेलन फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम है, ये कंटेन करती है फूड। फॉर एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर हैज़ मैनी स्मॉल बर्ड्स, मतलब इसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल बर्ड्स और आई होते हैं। आई कंटेन्स बर्ड्स विच गिव राइज टू, जो आई है वो बर्ड कंटेन करते हैं और एक न्यू प्लांट को राइज करते हैं। रिहिजोम इज ए शॉर्ट ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम, ये इसके पास शॉर्ट ब्रांच अंडरग्राउंड स्टेम्स प्रेजेंट होती है। हैविंग डिस्टिंक्ट नोड्स हैं, और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स, इस तरीके के नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। द नोड्स एंड इंटरनोड्स बेयर बर्ड्स विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, मतलब कि जो ये बर्ड्स हैं, इंटरनोड्स और नोड्स, ये क्या आते हैं, इनके ऊपर एक बर्ड्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स में, ठीक है। रिजोम एक शॉर्ट ब्रांच अंडरग्राउंड स्टेम, इसके बाद डिस्टिंक्ट न्यूड्स और नोड्स और अंटरनोड्स, ये नोड्स हैं और ये क्या है बेटा, अंटरनोड्स होते हैं। जो ये नोड्स और अंटरनोड्स हैं ना, इसके बर्ड्स को बियर करते हैं और एक न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स जैसे कि जिंजर, गार्लिक, बनाना, अनियन, लिली एंड ट्यूलिप रिप्रोड्यूस होते हैं रिजोम मेथड से ही, रिजोम से। अब नेक्स्ट कॉर्न इज द अंडरग्राउंड स्टेम कंसिस्टिंग ऑफ स्वेलन बेस सराउंडेड बाय स्केल लीव्स। कॉर्न क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो कंसिस्ट करता है स्वेलो बेस सराउंडिंग बाय स्केल्स, मतलब स्केल्स की तरह इसके सराउंडिंग्स होते हैं इस तरीके के। द स्टेम्स हैज वन और मोर बर्ड्स दैट ग्रो इनटू, इस स्टेम में एक या एक से ज़्यादा बर्ड्स होते हैं। अगर बर्ड्स हैं स्टेम में तो ही वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक न्यू प्लांट को। द प्लांट ऑफ ग्लैडियोलस एंड कोलोकेशिया ग्रोज फ्रॉम दी कॉम से ये दोनों प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ये देखो कोलोकेशिया कॉम, यहाँ पर स्टेम में स्केल लीव्स है, मतलब इस तरीके की स्केल लीव्स हैं, ऑक्सिलरी बर्ड भी प्रेजेंट है और उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। बल्ब इज अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग अ बर्ड एंड मेम्ब्रेनियस लीव्स, मतलब ये लीव्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आपको अनियन खाया है सबने, अनियन में क्या होता है, लीव्स टाइप के होते हैं ना, एक लीफ निकाल के लीव्स खाते हैं हम, तो उस लीव्स को बोलते हैं स्केल। द स्केल स्टोर फूड मटेरियल, जो स्केल है फूड मटेरियल को स्टोर करता है। द बर्ड्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जो ये यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं वो एक न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। बल्ब्स आर टू ग्रो द प्लांट्स सच एज गार्लिक, ट्यूलिप एंड अनियन, जो बल्ब्स हैं वो ग्रो होते हैं न्यू प्लांट्स में। इसमें ये कौन से में प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, गार्लिक भी आपने देखा होगा स्टेम लाइक, मतलब कि ये स्केल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूलिप्स में भी और अनियन में भी। तो ये इस फंक्शन से, इस मेथड से प्रोड्यूस हो जाते हैं। Now aerial stems. In some plants, a slender branch coming out from the base of the stem grow and bend to touch the soil. It develop roots and bud at the point to contact with the soil. For example, strawberry. अब बेटे एरियल स्टेम्स में क्या होता है ना, कुछ प्लांट्स की ना ब्रांचेस ना, मतलब कि स्टेम से निकलती है, बेस ऑफ द स्टेम्स के पूरा मतलब बेस तक लग जाती है। ये देखो ऐसे स्टेम से निकली, बेस तक लग गई, उसके बाद फिर वो सॉइल को टच करती है और वहाँ से वो डेवलप करती है रूट्स और बर्ड्स एट द पॉइंट ऑफ द जब वो सॉइल के साथ ऐसी ब्रांच स्टेम से निकल रही है, उसके बाद वो सॉइल को टच कर रही है, सॉइल को टच करने के बाद ना वो डेवलप हो जाती है रूट और बर्ड्स में, एक जब वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में आती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी में ऐसा होता है कि एक ब्रांच निकली, वो ब्रांच सॉइल के साथ टच हुई, सॉइल के साथ टच होने के बाद वो उसने क्या किया, रूट और बर्ड्स को डेवलप किया। इट मीन्स एंड सम ग्रास, कुछ मीन्स में और सम ग्रास में, फॉर एग्जांपल डूब, द स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, देयर वो ग्रोइंग अलोंग दिस सॉइल, तो फिर वो सॉइल के साथ ग्रो करते हैं सॉइल के साथ। द स्टेम इन सच ग्रासेस हैव नोड्स एंड एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब ऐसे ग्रास स्टेम, द स्टेम इन सच ग्रासेस, ऐसे ग्रासेस में जो स्टेम होते हैं उनके नोड्स होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। द नोड्स फॉर्म करते हैं रूट्स दैट एम्बेडेड इनटू द सॉइल एंड गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। ऐसे नोड्स जब वो फॉर्म करते हैं रूट्स, उसके बाद फिर उसको हम सॉइल में डाल देंगे तो एक न्यू प्लांट में जनरेट हो जाता है। द पार्ट ऑफ द स्टेम जॉइनिंग द न्यू प्लांट्स wither away when the new plant mature. The plants of the stem joining the new plants, जो part of the stem है वो join करते हैं new plants को wither away when the new plant, जब new plant पूरा mature हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो join करने लग जाते हैं by roots। अब ये aerial stem से कि ये branches, कुछ branches सॉइल को टच करती है, वहाँ से न्यू प्लांट जनरेट कर देती है, नेचुरल वेजिटेशन है। बाय रूट्स,
कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस है फ्लैशी ट्यूबर्स और roots and adventitious birds. The roots of such plants contain a large quantity of food inside them. ऐसे roots के पास ना ऐसे roots के पास large quantity of food होता है जो कि क्या करते हैं, द इन्वेंटिव बर्ड्स ऑफ ईच रूट इज कैपेबल फॉर गिविंग, उनके पास जो बर्ड होता है वो बर्ड्स ऑफ ईच रूट में जो बर्ड होते हैं वो कैपेबल होते हैं एक न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए। मतलब कि ये किस में हो सकता है, स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस में, क्योंकि इसमें जो फ्लैशी ट्यूबर्स होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वो रूट में बहुत ज़्यादा बर्ड्स होते हैं, वो रूट के अंदर बहुत सारा क्या हो रहे हैं, बर्ड्स हो रहे हैं। बाय लीव्स इन सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफ्लाम एंड क्लंचिंग, मतलब बाय लीव्स मतलब ऐसे प्लांट जो कि आप सिर्फ और सिर्फ प्लांट का सिर्फ और सिर्फ लीफ ही सॉइल में पेनिट्रेट करोगे तो उससे एक न्यू डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगा, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसको ना स्टेम की ज़रूरत है ना रूट की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ लीफ से ही क्या कर सकते हो आप, एक न्यू प्लांट को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेम से जनरेट हो रहा है, ये रूट से जनरेट हो रहा है और ये लीफ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रख लो। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। आप ये देख सकते हो, देखो लीफ के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं ना, लीफ के ऊपर क्या आ रहे हैं, बर्ड आ रहे हैं, तो वो बर्ड क्या कर रहे हैं, एक न्यू प्लांट को जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पास रूट के पास बहुत ज़्यादा क्या है, रूट फॉर्म हो रहा है, रूट में क्या है, बर्ड्स हैं जो कि एक न्यू प्लांट को अराइज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, so learn this chapter again at home. Thank you and have a nice day.